السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے جنرل صاحب اور ان کے ہمراہ ان کے ایک محافظ. بس جنرل صاحب پہ بات ختم ہو گئی نا، یہ کوئی چیز ہے انٹروڈکشن کروانے والی؟ اس کی وجہ سے ہی تو آپ کے سیگمنٹ میں رونق ہوتی ہے. وہ اس کی وجہ سے نہیں، آپ سے تو بور ہو گئے ہیں لوگ سر. یہ کیا؟ ایکسکیوز می. جی ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ہوگی دنیا تڑ اور نہیں ہوگی. آپ کے ملک کو کرائسس سے نکالا ہے میں نے. اچھا جی، آپ کے ملک کو سنبھالا ہے میں نے. آپ اینکری چھوڑ دیں یار، امرودوں کی ریڈی لگا دیں. آپ جو آپ کی آواز کا ٹمبر ہے نا، آپ کے ساتھ سوٹ وہ کرتا ہے. اتنی آپ کی آواز لاہور میں بیٹھ کے آپ پنڈی تک فروخت کر لیں گے. صرف ایک یہاں سے آپ آواز لگائیں گے اور وہ ادھر تک. یعنی میں اونچی بولتا ہوں؟ بہت نہیں، آپ تو بہت دھیما بولتے ہیں، بہت ہی دھیما. آپ ہی بولتے ہیں السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. آج جو ہمارا عنوان ہے پروگرام کے کتنے اندر، برے لگ رہے ہیں وہ عنوان ہے دہشت گردی کے خلاف جو آج کل ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ سارا کچھ. تو یہ لفظ جناب کہا دیا مستیاں چڑیاں ہیں. اچھا، یہ لفظ مستیاں نہیں ہوتا، یہ لفظ ہوتا ہے مستیاں. خواتین حضرات لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. مت کرے بدماش نٹ کھٹ آدمی ہو. ہوں اتوں چک شجاعت جانا یا کسی گروپر جانا تھی؟ اور کریں اس طرح کی فضول حرکتیں. میں جرنل لے کے آیا تو خسرا واپس لے کے نہیں جانا. میں تو سمجھا سی تہاڈی حفاظت کر دو تو جگتا کر. مجھے غصہ آ گیا نا آفتاب، یقین کریں مجھے غصہ آ گیا نا. غصہ آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں کچھ بھی نہیں کروں گا. کیا میں کوشچن لینے لگا. جی پلیز. جی سر. اگر آپ کو پاکستان آنے سے پہلے یہ پتہ چل جاتا کہ آپ کے ساتھ یہاں پہ یہ کچھ ہونا ہے تو آپ اپنے فیصلے کو ریویو کرتے ہیں یا پھر بھی پاکستان آتے ہیں؟ کہاں آتے سر، کہاں آتے؟ کہنے کو تو کہہ رہے ہیں جی، ہر صورت آتا، ڈرتا ورتا نہیں ہوں. لیکن حالات دیکھ لیں بیچارے. ایک چھوٹی سی بیماری نے تکنیک کا ناچ نچا دیا. مجھے کچھ بھی نہیں ہونا. اگر مجھے کچھ ہوا نا تو آپ کی وجہ سے ہوگا. یہ یہاں پر بیٹھ کے شکایتیں لگا رہے ہیں نا، کہتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں، ڈرتا نہیں. بھائی سیدھی سی بات کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، وہ آج کل کرائسس میں دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. ہر دوسرے دن ان کے گھر کے پاس سے 5 کلو 7 کلو 6 کلو مواد برآمد ہو رہا ہے بارودی. ہاں جی چلیا. لوگ چلیا نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. لوگ اس کو اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں کہ جناب یہ خود ہی رکھوا رہے ہیں، ان کے پیٹی بھائی یہ کروانا چاہ رہے ہیں، دہشت کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں. اور میں ڈر رہا ہوں خدا نہ خواستہ کہیں کوئی واقعہ نہ پیش آ جائے. اگر واقعہ پیش آیا تو سارا مدعا حکومت پہ ڈال دیں گے کہ جناب اس وقت آپ اندھے تھے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. نہیں جی، اللہ زندگی دے، تو ہی جاؤ، سانو نہ مروا دینا. جاؤ. یہ جو انہوں نے بات کہی وہ تو اپنی جگہ ہے. 2 منٹ کا بریک دے دو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. آپ یہاں پروگرام کر رہے ہیں، میرا ترا نکال رہے ہیں. جی جنرل صاحب، اب سچ سچ بتائیے گا کہ آپ کی طبیعت کون سے ملک میں جا کے درست ہو سکتی ہے؟ پہلے یہ بتائیے آپ کو سچ سچ کیوں بتاؤں؟ آپ میری منگیتر ہیں یا میں آپ کا کانا ہوں؟ آپ کو سچ سچ ایک بیچ میں نہ بولیں، کرلے مار کھائے گا مجھے. اینک دا نمبر بتاؤ، منگیتر اس طرح دی ہوتی. اس تعلق کو آپ کوئی نام دے سکتے ہیں، منگیتر نہیں کہہ سکتے. وہ مولانا فضل الرحمان دا گن مین ہے. کی ہو گیا تعلق؟ ایسی بات نہیں ہے، میں کمانڈو ہوں، کمانڈو. ہم نے بڑے بڑے دشمنوں کو فیس کیا ہے. اور بہت اچھا سوال تھا ان کا، بہترین سوال. وہ سوال ہے ہی نہیں، وہ چیزہ لے رہے ہیں میرے ساتھ. پوچھ رہے ہیں کسی اور ملک. فرانس جی، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، فرانس جا کے بہت خوش ہوتے ہیں. ریویرا پہ جاتے ہیں. ریویرا پہ جاتے ہیں. کیا بات ہے، ایسی ترنگ میں آپ لگے ہوئے ہیں نا یار. ریویرا پہ جاتے ہیں. بس کریں. ریویرا میں واقعی بڑے سے بڑا ہو جاتا ہے. مجھے یہ بات بتائیں، اینکر کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے؟ کون سی چیز؟ یہ جس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے مجھے تڑیاں لگا رہے ہیں، ان کو روک نہیں رہے. میں تڑیاں نہیں لگا رہا، خدا نہ خواستہ، میں تو مشورہ دے رہا ہوں آپ کو. مشورے آپ بہت اچھے دیتے ہیں، بہت اچھے مشورے. آپ اس طرح کریں، محلوں میں شادیاں کروایا کریں. مشورہ دینا. میں ویسے کرواتا ہوں شادیاں، جہاں اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا کرتا ہے میں کروا دیتا ہوں. حرکتیں تو آپ کی طلاقیں کرانے والی ہیں. شادیوں کی بات کرتے ہیں. میں یہاں پر پلمبروں کا ذکر کرتا ہوں، انہوں نے کہا تھا ہاں میں ٹوٹیاں بھی لگاتا ہوں. اپنی خیر منائے جنرل صاحب. یہ دیکھا اپنی خیر، کوئی اینکر دیکھا اپنی اس طرح کرتا ہوا اپنی خیر منائے جنرل صاحب. تاریخ ہے انسانی میں
अलाकू खान जो है बदनाम हुआ है, वो तो बच्चा था छोटा। अलाकू खान के बेडरूम में इनकी तस्वीर फ्रेम होकर लगी हुई थी, ऊपर फूलों का हार, नीचे वो रोज कहता था पुरुष। जी सोफिया। मुशर्रफ साहब, पॉलिटिक्स में आपका मुर्शिद कौन है? बात सुने, आप फैशन के ऊपर बात करें मिस सोफिया। पॉलिटिकल सवाल आप कर रही हैं, आप जैसी सरकारी अस्पतालों में नर्सें होती हैं। सारे प्रोग्राम में पहली गल मुशर्रफ साहब दुरुस्त की थी। शुक्र है मरीज भी बोले आ बाबा टोपी वाला उन्होंने बहुत खिलाफ आ, कुड़ी बहुत चंगी आ, तू सिर्फ थाने बयान देने आ, इन्हें मैं खिंच के लै जाना। तुम सोफिया को गैर जरूरी तौर पे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ओ जनाब लेडीज दा असी हाँ लेडीज है, बहन के मामले में टच ही आ जाता। पुलिस की कोई मां भैन नहीं होंदी, कहता पुलिस की मां भैन नहीं होंदी और हर चौंक च हो रही होंदी। करप्ट और नाअहल पुलिस की हो रही होती है। जी सर। जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका नाम बड़ी इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। जी सर, जब आप पाकिस्तान आए तो आपकी मदर ने भी आपको मना किया कि ना जाओ। अभी आप आ गए तो पछता तो रहे होंगे और कह रहे होंगे काश की माँ दी सुन ली होंदी। ये मां दी मनी होंदी, अज मां याद ते ना होंदी। माँ तो पहली बात है याद ही नहीं आ रही मुझे, नानी याद आ रही। नंबर 1। नंबर 2, इन खातून ने खुद सवाल नहीं किया, ये इनके अंदर का गुजरा वाला बोल रहा है। अच्छा, सऊदीया का क्या रोल है? ये जो बड़े अहम शख्सियात आ जा रही हैं। सऊदीया एक लीडिंग पावर है आपके मुल्क की, आपकी दुनिया की। असल आपकी मैं समझता हूँ इंश्योरेंस पॉलिसी है यही, वरना ये कभी ना आते। ये हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते रहे जिंदगी भर, और इनकी फाइनल कैलकुलेशन यही थी कि जब तमाम राहें मसदूद हो गई, जब सारे दोस्त ब्रूटस बन गए, तो फिर एक इलाका ऐसा है जहां मैं आवाज देकर उन्हें उनका वादा याद दिला सकते हैं। सऊदी अरब का रोल आपने मियाँ साहब से पूछा है, या आप उनसे पूछे ना कि सऊदी अरब का क्या रोल है? आप उसी एक ड्रामे के कैरेक्टर्स हैं सारे, आप भी, मियाँ साहब भी, और वो दोस्त भी जो आपकी मदद करते रहे। मानते क्यों नहीं आप? आहिस्ता बोले, आप मानते क्यों नहीं? तो डांट रहे हैं। मैंने मीडिया को आजादी दी है, और अगर मैं मीडिया को आजादी ना देता ना तो आज आप उकाड़े में लस्सियां बेच रहे। जब आप नहीं आए थे इक्तदार में, मैं उकाड़े में लस्सियां बेचता था। ठीक है, लस्सियां नहीं बेचते थे, डाके मारते थे, मगर फिर भी और जनाब उन्होंने लस्सियां बेचनी, चौरी बंदे 2500 मੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਚੋਰੀ ਦੀ। जी जनाब। सर ये जो ड्रोन हमले हैं, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है अमेरिका के साथ, ये आपने करवाया? हेलो, एक केस हो रहा है जी। और जनाब पहले मुकर नहीं रहे, तो ये भी खप पा दे। बात सुनो अमी कुकड़ी, तमीज से बात करें, मेरे मेहमान है वो। आपका मेहमान होगा अपनी जगह, लेकिन मुझे लग रहा है ये चरस पी के आया है, अपने सेंसेस में नहीं है। मैं 1 करोड़ बार कह चुका हूं मेरे साथ कोऑपरेट करो यार। क्या कोऑपरेट करें? आपने ड्रोन की इजाजत दी कि नहीं? ये आपने क्या किया? अभी यूं बैठे होते, क्या कोऑपरेट करें? जनरल साहब वो नारा दसो ना जरा जरा, सबसे पहले पाकिस्तान। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, बड़ा तड़ा हेलो वर्गा मुंह ਇੱਥੇ आ जाओ। नाजुक दिल को मजबूत करें आप। जनरल साहब कमांडो बने। मैं क्या करूं, कमांडो बनाने। अब तो सोफिया कह रही है कमांडो का हुन ते कंध नहीं टप्पी जांदी यार, कंध टपनी मैं बांदरी हूं। कमांडो कंध टपता है सर। वो एक्सरसाइज कैसा है? लफ्ज तो ठीक तरह चलो सर। चिराट में आपकी ट्रेनिंग हुई है, मंगला झील में आपको हेलीकॉप्टर से फेंका जाता था। फिर फेंका जा, मैं खुद छलांग लगाता था यार। वो एक ही बात है, फेंका जाता था। मैं क्या वो सैलाब वाली बोरी हूँ? तैर के पूरी झील 1500 फुट गहरी है कई जगहों से, तैर के बाहर निकला करते। आप किसी दिन आए मेरे साथ स्विमिंग करने के लिए मेरे इधर फार्म हाउस पे। आप मेरे फार्म हाउस पे हैं, मैं करवाता हूँ। नहीं नहीं, आपके नहीं आऊंगा, आप डबो दोगे। आप मेरी तरफ आओ, मैं आपको डबोऊंगा। मैं तो कहना कट्ठे दोवें तुसीं वड्डी नहर ते आओ। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिनोज रात कहा यह जाता है कि नंबर टांके बगैर तरक्की के मराहल तय नहीं किए जा सकते। आज यही अहम नुक्ता हमारी ग्रुप डिस्कशन का मौजू है। गुफ्तगू का आगाज करेंगे जिब्रान बशीर साहब से। आप HR में एक अथॉरिटी हैं और हाल ही में एक बहुत उम्दा किताब आपने तख्लीक की है। जी जिब्रान साहब। अगर हम इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर को देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यही एक कल्चर चल रहा है, और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की सेठ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो वहाँ पर भी यही हो रहा है।
लेकिन अगर मल्टी नेशनल्स को देखें या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को देखें जहाँ पर पूरे प्रॉपर सिस्टम्स हैं, जहाँ पर प्रमोशन सिस्टम्स हैं, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन सिस्टम्स हैं, वहाँ पर अब चीज़ें निकल कर ह्यूमन कंट्रोल से निकल के सिस्टम ओरिएंटेड हो चुकी हुई हैं। ब्यूरोक्रेसी में ये तरीका आज भी आम है अभी भी ये आम है। सिक्का राजुल वक्त हमारे स्पोर्ट्स से मुतालिक इदारों में भी ये मौजूद है, जाहिर है वो ब्यूरोक्रेसी के अंडर है। ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਕਲਚਰ ਚ ਬੜਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ तुमसे पूछा किसी ने? जी ਐਂਕਰ सर। ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਸਕਟ ਬਾਈ ਲੱਗਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਗਜ਼ਲ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ये मुझे कह रहे हो तुम? ਉਹ ਜਨਾਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ नहीं, अभी तुमने मुझे क्या कहा? ਆ ਬਾਸਕਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ नहीं ये गजल वाली बात ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ का- ਡਰ ਆ ਕਿਤੇ ਥੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਓ नहीं, क्या आपका ये मुहाफिज है कि भांड है? अरे छोड़े ना, ये हम कितनी अच्छी बातें कर रहे थे, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वो वाजा किधर है, किस साइड? ਆ ਵੇਖਿਆ जी जिब्रान साहब, मल्टी नेशनल कल्चर पे जी। बात हो रही। एक मैं इजाफा इसमें करना चाहूंगा कि महज बात खुशामद की नहीं हो रही, जी एफिशिएंसी की, ओवर एफिशिएंसी की। आपने देखा नहीं कि लुक बिजी डू जी नथिंग? बिल्कुल। एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप जिस डिपार्टमेंट में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ के गोल्स अचीव करने में आपका कोई किरदार है? अगर तो है तो फिर इट मीन्स कि आपको अलहदा से जाकर अपने बॉस की, अपने किसी सीनियर की जाकर उनको अपना एफिशिएंसी नहीं शो करानी पड़ती, कोई खुशामद नहीं करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा नजर नहीं आना पड़ता, बहरहाल आपका काम बोलता है। हमने पुलिस में लोगों को बहुत कार्रवाइयां डालते देखा है। ब्यूरोक्रेसी अटी पड़ी है कार्रवाई की, मैं समझता हूँ एक रुदाद होती है सुबह से शाम तो तक। उसकी वजह यही है कि ब्यूरोक्रेसी में या इस वक्त अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो यहाँ पर हर चीज़ बस एक ऑपरेशनल है, कोई गोल सेटिंग नहीं है, कोई यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को कोई विजन नहीं है, कोई पता नहीं है कि हमने अपने अदारों को लेकर कहाँ पर जाना है। आबिद फारूक साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मल्टी नेशनल्स की जो इन्होंने बात की है, इनके अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं और ये आउट ऑफ द वे अपने वर्कर्स को मजबूर करते हैं कि उन गोल्स को अचीव किया जाए। दूसरा, अगर इनका सिस्टम कोई ऐसा बाकमाल सिस्टम होता तो दुनिया में इस वक्त जितनी बड़ी मल्टी नेशनल्स अमेरिका में बंद हुई हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये कभी नहीं जा सकता, ना किसी HR सिस्टम से और ना किसी और सिस्टम से, इसलिए कि ये नफ्स इंसानी का मामला है। नंबर टांगने की जो खसलत है, इसका चूँकि ख़ात्मा इंसानी तज़किये के साथ ही हो सकता है, इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं। हमारी अपनी तारीख़ इससे भरी पड़ी है कि आउट ऑफ टर्न तरक्कियाँ दे के किस तरह गैर मौजू बंदों को, अपनी पसंद के बंदों को आगे लाया गया और उसके नताइज हमारे इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान। हालिया मिसाल ये हजरत ये तीसरे चौथे नंबर पे थे। मैं तो अगेंस्ट हूँ इस चीज का। आप मेरा पूरा रिकॉर्ड उठा के देखें, मैंने जिंदगी में कभी किसी की खुशामद नहीं की है, और जिसने मुझे तरक्कियां दी हैं मैंने उसकी खुशामद नहीं की, उसकी मंजी ठोकी है। आपके सामने है। आपने मियां नवाज शरीफ को सजा दी थी आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोट? ज्यादा मियां नवाज शरीफ ना करें ना, वो भी अगर देख लेंगे तो ध्यान पहुंच जाएंगे। ये देखें ना इस वक्त सिचुएशन। सर एडिया संजीदा गल्लां कर रहे ने आबिद साहब, तुसी ये दसो अच्छी शकरकंदी कितों मिल जाएगी? और इन्हां दी सजी जेब च होनी है, यकीन कर। ये भाई हुणी तो इत्थे नहीं सी बहिंदे जी। यार तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ के ओवरसीयर हो? पता नहीं इत्थे मुंडा मखौलिया जा बहिंदा, ये प्रोफेसर भालिया तुसी इत्थे। वो फजूल आदमी जो है जेड़ा होता है मखौलिया बहिंदा जी फौत हो गया, वो कहीं पुलिसमैन बन के खड़ा हो जाता है। नहीं सर वो चोर होगा, सी चोर नहीं चोर, वैसे मैंने सुना है वो चोर का बच्चा है बाकायदा। और छठो जनाब, छठो जी जनाब। जो HR के टूल्स हैं या जो मैनेजमेंट के टूल्स हैं, ये भी किसी चीज़ को 100% जो है वो ओके नहीं कर देती, लेकिन होता सिर्फ ये है कि कोई 80 to 90% तक चीज़ों को सिस्टम में ले आती है कि वो जो जबिलत है इंसान की, या जो किसी जगह पर वो कोई गलत रास्ता इख्तियार करता है, मैनेजमेंट जो है वो उसको कंट्रोल करती है। बस यही है खूबसूरत। अच्छा जी, हम बात करेंगे गिफ्ट यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर हमारे साथ बैठे हुए। जी जनाब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जब कंपटीशन फ्लरिश करता है, इंक्रीज करता है, उसमें स्किल बेस्ड जॉब्स हमें चाहिए फ्रंट लाइन पे। आप किसी बंदे को सिफारिश से ले आओ, वो चापलूसी करके आ जाए, एक लेवल पे चला जाए, लेकिन अगर उस बंदे के पास वो स्किल नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता। 4 दिन रहेगा फिर भाग जाएगा। बिल्कुल जी सोफिया। लोग जो हमारे लीडर्स हैं और हायर जो जिनकी डेजिग्नेशन है, वो चाहते हैं कि लोग उनको TC करें या उनको खुशामद करें ताकि उनके करीब रहें। लोगों को अपनी खुशामद कराना और खुद को खूबसूरत पसंद करवाना, खुशामद करवाना भी ये जबिल्लत में शामिल है। बाज लोग कह रहे होते हैं यार थोड़ी सी खुशामद ही कर दो। पिंडा च बड़ी खुशामद हुंदी जनाब,
ਆ 20 ਰੁਪਏ ਮਸੀਤੇ ਦੇ ਔਰ ਘੰਟਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਬ पहुंच गया। यार बात सुनो, नजम सेठी के शो में क्यों नहीं चले जाते? ਇਹ ਸਰ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ। जी मास्टर जी। मैंने इतराज है जी सोफिया बीबी की गल ते। सोफिया पे एतराज है आपको? मुझे जी इनकी बात पर ये एतराज है, इन्होंने कहा कि जो टीचर है ना जी कोई कॉन्फिडेंट स्टूडेंट को पसंद करता है। 80% टीचर ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंस दिखाता है उसी को फेल कर देते हैं। ये बात वैसे बड़ी पते की है। ये मेरी ये जो जिब्रान बशीर साहब जो आए हुए हैं, इनसे पूछे यूनिवर्सिटी ने इनके साथ क्या कि इन्हें कहा जी मैं किताब लिखनी, उन्होंने यूनिवर्सिटी चु कट दिता। नंबर टंगन वाला बंदा जो है ना जो भी प्रूव करता है, मैं मेहनत की थी तो मुअत्तल हो गई। इन्होंने एक तकरीर कर दी थी चीफ मिनिस्टर पंजाब के सामने। अच्छा जी। तो कुछ ज्यादा ही साफ गोई का मुजाहरा कर बैठे थे। ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ। हाइड पार्क बरतानिया में, बाहर दे मुल्का में नहीं, सिर्फ बरतानिया में, लंदन में है हाइड पार्क। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। जिस तरह की बातें कर रहा है मुझे लग ही नहीं रहा खबरनाक में बैठा, लग रहा है सब्ज मंडी में आके बैठा हूँ। सब्ज मंडी में क्या होता है? वहां भी इंसान ही होते हैं, वो आप जैसे ही नहीं होते, वहां भी इंसान ही होते हैं। कुछ डांटे बगैर भी बात कर सके। यार इतने टीचर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो मास्टर साहब बैठे हुए हैं, आपको कोई नहीं सिखाता यार मास्टर को कैसा होना चाहिए। हर तरह के आपके ऊपर केसेस बने हुए हैं, आपकी कज बेसी से रिलेटेड। आपका पूरा सीवी उठा के देखा जाए, यहाँ से भी फायर, वहां से भी फायर, यहाँ से भी कॉलेजों से निकाला, यूनिवर्सिटियों से निकाला, और तो और इनके जो रिश्तेदार हाजिर सर्विस डिकेट है ना, उन्होंने भी इनको निकाला। ओकाड़े शहर से निकाल लिया गया, भाईजान जाए उधर लाहौर में जाके। मुझे जब भी कहीं से निकाला गया है साफ गोई की बिना पे निकाला तो गया ना। मास्टर जी आप सोफिया मिर्जा से देखें, इनसे आप इख्तलाफ कर रहे हैं, आपने अपनी शक्ल देखी है मास्टर जी, गोरकन की लालटेन जैसा आपका अच्छा भाई गोरकन दी लालटेन है तो अनु की इतराज है? कहां है? नहीं मैं कह रहे हैं जी है, इन्होंने की इतराज देखो है। अच्छा चलो ठीक है, सस्ते चावल जैसा इनका मुंह है मास्टर जी। अच्छा किन इस गल दा मैं यकीन कर, मैं कहता है दसो आगे करो गल। ये मैं तेरी बात कर रहा हूं। वो भी है, मेरे नाल गल कर है। क्यों भाई की तकलीफ है? हेलो ਉਹ ਭੂਤਰੇ ਸੰਡਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਹੋਰ क्या है पूतरे संडा जी? वो क्या होता है? ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਡਾ ਭੂਤਰਿਆਂ को बाहर ना निकले। मास्टर जी उर्दू में बताएं, आज तक खुदकुशी की कितनी बार कोशिश की आपने? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ 3 ਵਾਰੀ, रस्से चो निकल जाते। यार क्या फजूल कॉमेडी शुरू कर दी। कम से कम इन दिनों में तो ये फांसी वाले मजाक ना करो। अच्छा जी मास्टर जी, जो बंदा काम करने वाला है असल, जिसने काम करना है, ओनू नंबर टंगन की लोड़ ही कोई नहीं। ये बहुत अच्छी बात, तो यही तो मैंने कहा था, जेन्युइन बात की। और सोफिया तकरीबन यही कह रही थी। मास्टर जी आपको कोई जाती अनाद है उसके? मास्टर जी ने इतनी सी बात करने के लिए आधा घंटा बेइज्जत हुए थे। मास्टर ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ पता की है जी, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ ਕਰੇ। सती नजरात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।